So here is one new topic for you. Actually not new, you must have been reading this from last 4-5 years, but yes, it is there in class 11 syllabus, the grammar topic, and this is the second topic. First one was determiner, for which I have already uploaded the video. Those who have not seen it, please see it. And now second one is tenses, though this can be used for all the classes for 6 to 12, because children often complain about framing wrong sentences, or they are not able to frame sentences. This is because they don't have knowledge about tenses. So here I have made something very easy for you. So let us get started without wasting any time. So the first one is, why should we read tenses? Why should be well aware of this topic, tenses? The objective is just simple, children. You should know, and I'm sure at the end of the lesson you will be able to understand these 4 things. First of all, what are the types of tenses? Second is the basic tense patterns, and the third one is how the tense change with the subject, that you should know, which normally children make mistake, or they commit mistake in this. They forget to change it along with the subject change. So, and when to use different tenses and where. So let us proceed forward now, coming on to the types of tenses. First of all, everybody knows that it is of 3 types. It's studied under 3 headings: present tense, past tense and future tense. Now we'll take one by one. First we'll take the present tense. Okay. So these are the types of sentences in different tense. Like all the 3 topics have further division into 4 topics, like 4 parts you can say. The present tense जो है उसको हम divide करते हैं 4 parts में. पहला है simple present tense, दूसरा है present continuous, तीसरा है present perfect, चौथा है present perfect continuous. Then comes past tense. Past tense में हम पढ़ेंगे simple past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Similarly, in future tense also we'll study simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, so let us proceed to some of the verb forms, because tense शुरू करने से पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होता है verb forms के बारे में. तो बहुत ही basic सा concept है बच्चों. Mainly verbs have 4 forms. The first one is the basic form that we call V1. Then comes the past form of the verb, that is called V2. And then comes past participle form of the verb, which is called V3. And V4 is the present participle of the form. Okay. So have you heard about V5, children? I'll tell you, this V5 is actually related to V1. As I proceed forward, I'll tell you about this V5. Yes, there is one such example which you can see. It's here. The example is when we say V1, it is, I have taken the example of very simple word, and that is eat. Okay. Then V2 is the past form. As we know, this is ate. Then past participle, eaten. Present participle, eating. Children, this is also called as VING form. V4 is also called as VING form, and I was talking about V5. Yes, and with this example it will be very clear to you. The V5 is eats. Okay, so it is not separated from these verbs. Yes, it is related to V1. So V1 and V5 is actually the first and the fifth form. Okay. Now I hope this example is very, very clear. Similarly, you can take another example: play, played, played, playing. Okay. So you can practice, and you should be at this age well aware of at least 100 verbs at your tips, children. And this is what is the difficult thing. You don't by heart it. इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए एक बार. उसके बाद से आपकी vocabulary कभी गड़बड़ नहीं होगी, और आपके पास कलेक्शन होगा अगर 100 वर्ब्स का, तो मुझे लगता नहीं कभी कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में. बस इनका यूज़ समझ में आ जाए, और वो समझ में आ जाएगा जैसे ही आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. Now coming on to simple present tense, what I call structure, or I can
call it equation is this. This is the pattern, this is the equation, and this is the structure. In some of the books it is called as structure. So you have to just by heart this. It is subject plus verb 1. When I say subject, I mean to say these. When I say verb, I mean to say these. And these are the object. So we will just have to by heart this, that the subject plus V1 becomes simple present tense. Now let us take up the examples now. The examples are, when I say I, this is subject. What is the form? Yes, it is V1. When I say subject he, what is the form? Basic form has converted into V5. Similarly, she, V5. They, V1. We, V1. Ramu, V5. सीता, V5. So बस एक चीज का ध्यान रखो इस पैटर्न में कि जब भी आपका सब्जेक्ट आई, ठीक है, देन वी हो, और कोई नाम अगर दिया हो, सपोज कर लो राम दिया है या सीता दिया है, ठीक है ना, या फिर ही, शी या दे दिया है. बस ये 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी है. जब हम आई फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम सिंगुलर होते हैं तो वी से आई, और जब हम प्लूरल होते हैं तो वी से वी, है ना, हम वी कहते हैं. तो हम इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे? V1. बस हम इनके साथ लगाएंगे ईट. लेकिन जब हम बात करते हैं ही, शी और दे, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप खुद ही देख लो, ही शी अकेला है तो अकेले के लिए हम लगाएंगे ही ईट्स, हम लगाएंगे V5 ही और शी के लिए. देख ले हम लगाएंगे V1 अगेन. तो ये एक टेबल आप ऐसा बना लीजिए जिसमें आप ध्यान रख लीजिए कि V1 आपको कहाँ बनाना और V5 आपको कहाँ लगाना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सेकेंड, V1 एंड V5. बहुत सिंपल सा फंडा है. जो चीज़ सिंगुलर होती है उसके साथ हम ये लगाते हैं, और जो चीज़ प्लूरल होती है उसके साथ हम V5 लगाते हैं. अब सिंगुलर क्या क्या होता है? अब आप कहोगे कि मैम सिंगुलर तो आई भी होता है. तो यस, हम शुरुआत में ही बता दें आपको, आई एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए हम जो है इसके साथ लगाएंगे आपका V1. ठीक. लेकिन ही, शी, राम या रामू, सीता, अब ये सब तो सिंगुलर हैं, तो हम V5 क्यों लगाएं? ये सवाल आता है. तो बच्चों V1 और V5 एक्चुअली बेसिक फॉर्म्स ही हैं. यही डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए. तो बस ये ध्यान रखना. मैं एक सिंपल सा बच्चों को बोलती, बेटा एक चीज़ याद रख लो. एक एग्जाम्पल जो मेरी मैम ने बताया था मुझे, वही मैं अपने बच्चों को बताती हूँ. When I say the boy plays, okay? और दूसरा क्या बोलती हूँ? The boys play. डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ सिंगुलर है तो एस लग गया, यहाँ प्लूरल है तो एस हट गया. तो जहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो ना, बस वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रख लेना. अब लेट अस इम्प्लीमेंट दिस. देखते हैं क्या हो रहा है. अब ये ही है तो हमने एस वाला लगा दिया ईट्स. शी है तो हमने फिर एस वाला लगा दिया ईट्स. रामू है, अकेला है, ईट्स. सीता है, एक अकेली सिंगल लड़की है, ईट्स. सिर्फ एक आई है, एक ऐसा एक्सेप्शन जो अकेला है, सिंगुलर है, लेकिन उसके बावजूद आपको उसके साथ V1 लगाना है, यानी ईट लगाना है. बस ये ध्यान रख लेना आपने. ठीक. अब आते हैं प्लूरल्स पर. प्लूरल्स यहाँ कौन कौन से हैं? दे है, ठीक है, और वी है. दोनों प्लूरल हैं तो हम दोनों के साथ क्या लगा देंगे? ईट लगा देंगे. तो दे और वी यहाँ पर लिख लेंगे. बस ये टेबल आपने याद कर लेना है. कभी अगर आप भूलें तो सिर्फ एक्सेप्शन में, अपवाद में आई आता है, वरना सीधा ऐसे याद कर लीजिए, सिंगुलर्स के साथ V5 लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम V1 लगाएंगे. ठीक. और ये द बॉयज प्लेज,
द बॉय प्लेज एंड द बॉयज प्ले, ये वाला फंडा तो एकदम याद कर लीजिए, ये इक्वेशन रट लीजिए, कभी कंफ्यूजन हो या आंख बंद करके ये एग्जाम्पल दोहराइए और आप देखिए आपको याद आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप पर प्रेजेंट टेंस के, और वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो पैटर्न क्या है, इक्वेशन क्या है, फिर वही सब्जेक्ट होगा। अब देखिए बेटा, नाम, अगर आपको नाम याद है ना तो आपको इक्वेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब मैं कंटिन्यूअस कहती हूँ यानी कोई चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर रही है, यानी मैं वर्ब कैसा यूज़ करूँगी, ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म वाला, डूइंग, ईटिंग, लीविंग, लिविंग, तो आईएनजी लग गया, तो कंटिन्यूअस से तो V4 आ गया। प्रेजेंट का मतलब है ऑटोमेटिकली, प्रेजेंट कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो हर किसी में आना है, यानी अभी भी वो काम हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ऑब्वियसली आईएनजी के साथ। आपको पता है कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते ही डूइंग, शी ईटिंग, हम ज़रूर एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है, जब आप कोई चीज़ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एस सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम इज लगा देंगे। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम आर लगा देंगे। अब क्या बच गया, आई। जब हमारा सब्जेक्ट ना सिंगुलर है ना, देखो मैंने कहा ना बच्चों, आई अपवाद है, सिंगुलर होते हुए भी ये सारे रूल्स दूसरे फॉलो करता है, तो आई के साथ आप लगा दोगे एम, सिंपल। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। देखिए अब आपको एग्जाम्पल्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए आराम से एग्जाम्पल देखिए और उनको सॉल्व करिए। कर पा रहे हैं? देखिए मैंने जो तरीका बताया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगा, इज और इज। देखिए अब आते हैं प्लूरल पर, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, क्या लगा, आर। सिर्फ एक एक्सेप्शन था हमारे पास, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है आई, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, आपको पता है, तो आई के साथ हमने लगा दिया एम। बस क्लियर हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर नाम पर आइए, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट है कोई चीज़ तो अभी भी हो रही है, इसलिए कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और चूंकि हम आईएनजी के साथ इज़ार हमने उठा लिया, तो हमारे परफेक्ट के साथ, अच्छा परफेक्ट वर्ड के साथ ही है हैज़ और हैव जुड़ा हुआ, ठीक है। जब भी किसी भी टेंस के नाम में परफेक्ट आएगा, या तो उसमें हैज़ होगा या हैव होगा या हैड होगा। चूंकि ये प्रेजेंट है तो इसमें हैज़ हैव होगा, और यही पास्ट परफेक्ट होता तो उसमें हैड होता। अब हम परफेक्ट यानी काम हो चुका है अगर, तो हम उसके साथ V3 लगाते हैं। V3 हो गया ईटन, V3 हो गया रिटन, V3 हो गया लेफ्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमको याद रखनी पड़ेगी V3। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स और आसान कर देंगे इन चीज़ों को। एग्जाम्पल कह रहा है कि अब ये तो कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, V3 तो आपको याद हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने V3 ही लगाना है। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं हैज़ लगाऊं, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं हैव लगाऊं। क्या करें, ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ज़्यादा, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाइए, और जब भी प्लूरल है तो आप हैव लगाइए, ठीक है। अब इस हैज़ हैव की लड़ाई में फिर एक कौन सी लड़ाई याद रखनी है, और वो याद रखनी है आई की। आई सिंगुलर है, रूल के हिसाब से क्या लगना चाहिए, हैज़, लेकिन रूल के हिसाब से हैज़ नहीं लगेगा, रूल के अगेंस्ट जाके लगेगा, और वो लगेगा हैव, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख लीजिए आई के साथ हमने हैव लगा दिया, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, बस एक्सेप्ट आई, बाकी सबके साथ रूल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, हमने हैव लगाया। शी, ही और रामू और सीता सिंगुलर्स हैं, तो इनके साथ हमने हैज़ लगा लिया। क्लियर? आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। सबसे पहले इक्वेशन पर बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इक्वेशन जो है वो कैसे निकला, आप देखिए फिर से। मैंने बताया ना, आपको नाम याद रहेगा तो आप कभी भी इक्वेशन निकाल लोगे, सब्जेक्ट तो लगना ही लगना है, ये चीज़ सब में रहेगी, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और पिछले बार क्या कही थी आपको, कि कंटिन्यूअस है अगर तो V4 ज़रूर रहेगा, यानी ING ज़रूर रहेगा, काम अभी भी हो रहा है। ING है तो हेल्पिंग वर्ब ज़रूर रहेगा।
परफेक्ट है तो क्या है बच्चों, परफेक्ट है तो हैज हैव है, प्रेजेंट है तो चलो सब्जेक्ट है मान लो, कंटिन्यूस है तो V4 है। कहानी कहाँ अटक रही है, बीन पे। अब ये बीन कैसे याद रखना है, एक एग्जाम्पल याद कर लो। आई हैव गोइंग, आई हैव लिविंग, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो हम क्या लगाएंगे, एक और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बीन, जो कि बी का फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान ये रखेंगे, जहाँ 3 नाम आ रहे हैं हमारे टेंस के नाम में 3 अक्षर हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही आपको 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है, हैज़ हैव, बीन और V4। हैव के साथ भी बीन लगेगा, हैज़ के साथ भी बीन लगेगा। हैज़ हैव का यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल वही मैंने बार बार लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बच्चों। आप देख सकते हैं मैंने जो मेजर एग्जाम्पल्स लिए वो यही लिए हैं, ताकि आप बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के हिसाब से बताइए रूल में क्या होना चाहिए था, लगना चाहिए था हैज़, और जब हैज़ लग रहा है तो बीन लग रहा है, बीन लग रहा है तो ईटिंग लग रहा है, तो आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन रीडिंग। ठीक, हैज़ बीन ईटिंग, सॉरी। उसी तरीके से रामू हैज़ बीन ईटिंग, सीता हैज़ बीन ईटिंग, और शी हैज़ बीन ईटिंग। तो आप देख सकते हैं ये शी, ही, रामू और सीता, चूंकि ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे इसलिए इनके साथ हैज़ लग गया। ठीक, अब जो हमारा अगला है वो क्या है, वो है प्लूरल। सिर्फ आई को आप इग्नोर करिए अभी फिलहाल मेरे कहने पर। ये हमारा वी और दे, ये क्या है बच्चों, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जब प्लूरल है तो आप देख लीजिए हैव बीन ईटिंग लग गया, हैव बीन ईटिंग लग गया। बचा सिर्फ क्या, बचा आपका सिर्फ और सिर्फ आई, और ये आई जो है ये मैंने कहा ना इसको आप हमेशा याद रखिए, ये आई जो है आपका, ये आपको हर तरीके से अलग इसके रूल्स चलेंगे, तो इसको भी हमने प्लूरल ट्रीट किया और इसके साथ हमने हैव बीन लगा दिया, आई हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स। ठीक, अब हम आते हैं सिंपल पास्ट पे। प्रेजेंट हमारे चारों हो गए, अब हम आते हैं सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट का सबसे पहले इक्वेशन डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, और चूंकि ये पास्ट है, चीज़ गुजर चुकी, हो चुकी, ख़त्म हो गई, कंटिन्यू नहीं कर रही है, तो हम V2 लिखेंगे सिंपल, यानी 8 लिखेंगे जो हमने एग्जाम्पल लिया था। अब तक हमने ईट यूज़ किया, अब हम 8 यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले जैसे प्रेजेंट में हमको याद रखना था भैया सिंगुलर के साथ क्या लगाएं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाएं, वहाँ कुछ नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ हो चुकी है इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सीधा सीधा V2 लगा देना है, यानी 8। ठीक है, तो I 8, We 8, She 8, He 8, They 8, रामू 8, सीता 8। ठीक, चॉकलेट्स सबने खाए, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ने खाया चाहे प्लूरल ने खाया, 8 लग गया, V2 लग गया। आगे बढ़े पास्ट कंटिन्यूअस पे, फिर आते हैं इक्वेशन डिराइव करते हैं। चलिए, इक्वेशन है पास्ट, पास्ट है तो क्या होगा, पास्ट है तो वॉज और वर होगा, कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस है तो आई एम सॉरी ये V3 लिख दिया है मैंने, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था V4, सॉरी V4 होगा ये। ठीक, तो ये V4 हो गया, कंटिन्यूअस हुआ तो V4 हो गया। अब जब सब्जेक्ट है हमारा वॉज वर है, V4 है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई फिर से। फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के। आई वॉज ईटिंग चॉकलेट्स, वी वर ईटिंग चॉकलेट्स। अब देखिए ज़रा अपनाते हैं हम वही वाला फंडा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंपल सा फंडा है, वॉज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। यहाँ फिर थोड़ी देर के लिए आप आई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हालांकि ये एक पहला ऐसा इक्वेशन या ऐसा टाइप है जिसमें हम आई के साथ वर नहीं लगाते। ठीक है, ये मैं अभी कंडीशन आपको बताऊंगी कब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। अब आइए चेक करते हैं ज़रा, शी, ही, रामू, सीता, देख सकते हैं वॉज 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 वॉज। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा कलर लेते हैं हम लोग। अब हम आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ। देखिए वी प्लूरल है,
दे प्लूरल है और इनके साथ हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया, सिंपल। तो ये देखिए हमने ये दोनों रूल्स हमने देखे, आपको आई होप समझ में आ गए। अब हम आते हैं आई के साथ। आई जो है हमारा यहाँ अलग इसलिए है, ठीक है, यहाँ मैं बता दूं आपको बच्चों, आई जो है इसके साथ वॉज भी लगता है और आई के साथ वर भी लगता है। कंफ्यूज? मैं भी आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। देखिए आई के साथ वॉज तब लगाएंगे जब वो एकदम सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक। लेकिन आई के साथ वर तब लगाएंगे जब हमारा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। कंडीशनल सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों आप? कंडीशनल सेंटेंस आइडेंटिफाई करोगे, इफ का इस्तेमाल होता है उसमें, ध्यान रखना। जैसे एज इफ आई वर अ बर्ड, सुना है आपने? एज इफ आई वर अ बर्ड। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेकेंड, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, एज इफ आई वर अ पॉलिटिशियन। चलो पॉलिटिशियन नहीं लेते हैं, हम पुलिस लेते हैं। एज इफ सॉरी, एज इफ आई वर अ रैबिट, ठीक। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गए। तो बस इसमें ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ ये कंडीशनल सेंटेंस जब इफ लगेगा हमारा तभी आप इसके साथ वर लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा आप, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का इक्वेशन चेक करते हैं। इक्वेशन हमारा कहता है पैटर्न सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, परफेक्ट मैंने कहा था आपको याद होगा, जब भी परफेक्ट होगा तो हम उसमें या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये पास्ट है, घटना घट चुकी है, तो इन दोनों के चांसेस नहीं है, सिर्फ हैड है। और हैड है, परफेक्ट है, हो चुका है, तो V3 लगाएंगे आप, ठीक है। और V3 क्या है यहाँ पर ईट में? V3 हमारा है ईटन, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। आई हैड ईटन चॉकलेट, वैसे ही लेते हैं, शायद आसान हो गया है आपके लिए, अब आप आराम से भर सकते हैं इसको। अब देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ हैड लगाना है, इसलिए टेंशन नहीं है। सबके साथ देखिए हैड है और ईटन है सबके साथ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड। तो पास्ट तो ज़्यादा आसान है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। यहाँ पर एक्सेप्शन भी नहीं है हमारे पास आई के साथ कि हम याद रखें, उसके साथ भी आई हैड लिखना है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर से चलिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। कंटिन्यूअस है तो V4 होगा, परफेक्ट है तो हैड होगा, सब्जेक्ट तो है ही है, और चूंकि पास्ट है तो ऑब्वियसली हैड है, और हैड है तो ING है। हैड के साथ ING डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए बीच में एक और CD बनानी पड़ेगी, और वो CD हो गई बीन की, ठीक है ना। तो बीन हमारा आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल, इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि कुछ भी याद नहीं रखना है आपने। आप देख सकते हैं सबके साथ हैड लग रहा है, सबके साथ बीन लग रहा है, और एक सेकेंड, सबके साथ V4, एक सेकेंड रुकिए बच्चों, सबके साथ आपका ईटिंग भी लग रहा है, V4 लग गया, सबके साथ बीन लग गया, सबके साथ हैड लग गया। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसमें में कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबके साथ हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। हेलो चिल्ड्रन, और अब सिंपल फ्यूचर ले लेते हैं। सिंपल फ्यूचर का आप सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर है। और ये चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसके साथ आप शैल या विल लगा लेते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ईट है। तो आप देख सकते हैं आई शैल ईट चॉकलेट्स, वी शैल ईट चॉकलेट्स, शी विल ईट चॉकलेट्स,
he will eat chocolates, they will eat chocolates, Ramu will eat chocolates and Sita will eat chocolates. तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। और अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इक्वेशन देखते हैं। सिंपल फ्यूचर का इक्वेशन है सब्जेक्ट, उसके बाद से है विल शैल और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का, चूँकि कॉन्टिन्यूस है तो VING करेंगे हम, तो और VING है और विल और शैल है तो बीच में एक और ब्रिज होगा बी का। तो फिर ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में है आई शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स, वी शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स। ये देखिए आई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, विल शैल अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेते हैं और उसके बाद से बी लग गया और लास्ट में V4 लग गया ईटिंग। इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद से आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। मैंने कहा था फ्यूचर परफेक्ट जब भी होगा तो आप ध्यान रखेंगे कैसे पैटर्न डिराइव होगा। सब्जेक्ट विल शैल तो रहेगा ही क्योंकि परफेक्ट है, तो मैंने पहले बताया था आपको हैज़ हैव हैड में से कोई एक होना चाहिए, तो ये फ्यूचर है। और वैसे भी विल और हैव, विल और शैल जो दो मोडाल्स होते हैं इनके साथ हम कभी भी हैज़ या हैड नहीं लगाते, हम इनके साथ सिर्फ हैव लगाते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन जो है वो तो ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शैल हैव ईटन, वी शैल हैव ईटन, शी शैल हैव ईटन चॉकलेट्स, he will have eaten, they will have eaten, Ramu will have eaten chocolates, Sita will have eaten chocolates। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, हैव सबके साथ लग रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। जहाँ डाउट होता है वहाँ हैज़ और हैव में होता है, फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दोनों में या तो विल मोडाल लगता है या शैल लगता है, और ये दोनों ही मोडाल्स के या कोई भी मोडाल के बाद जो आप लगाते हैं वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपका लगता है ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पर। इसमें फिर हम चलिए पैटर्न डिराइव करते हैं। कॉन्टीन्यूस है तो V4 होगा, हाँ। परफेक्ट है तो हैव भी होगा, सब्जेक्ट तो है ही है तो विल शैल हैव है तो बीन भी होगा। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पैटर्न और इक्वेशन जो बहुत कम, इसके सेंटेंसेस हम बहुत कम फ्रेम करते हैं क्योंकि ये भविष्य काल में हम जा रहे हैं और ऐसा करेगा, ऐसा कर रहा होगा, इस तरीके से करेगा। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, इसमें भी आप देखिए सबकी फ्रेमिंग सेम है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बस हम विल और शैल अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अब जो हम बाकी का जो टेंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा है। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ एंड वेयर दीज टेंसेस आर यूज्ड एट डिफरेंट ओकेजन्स एंड डिफरेंट इवेंट एंड व्हाट डू दे डिनोट। सो ये हो गया हमारा टेंसेस का फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू वॉच इट and if you have watched it till end, please do like, share and subscribe to my channel. This is Renuka Singh. Bye bye from Push English.